Start. Please listen, everybody. It is nothing about wrong or right. It is about discussion. So I will start with the scenario number one from the group number one. Our scenario is a researcher is designing a RCT to identify to test whether a wide intervention improves medication adherence in hypertensive patients. The task is to identify the relevant disparate guideline section that helps in defining the study objective and primary and secondary outcomes. Yes. According to the spirit guideline, the objective goes for point number 7. What is the specific objective or hypothesis? So item number 7 for objective. Everyone agrees? Objectives के लिए item number 7. Okay. अब इसमें दो पार्ट हैं, objectives and outcomes. Outcome for item number 12. Item number 12 for primary and secondary outcome. Everyone agrees? Item number 12. Okay. Next question is to draft a brief study objective and specify one primary and one secondary outcome using the spirit formulation. Okay. So, So, objective is to evaluate the efficacy of mHealth in improving the mobile intervention in hypertensive patients. okay. And To evaluate the evaluate the efficacy of mHealth. efficacy. अभी मैडम ने यूज किया efficacy. How many people agree that efficacy is a correct terminology to use? Efficacy. मैडम ने कहा है to evaluate efficacy of mHealth intervention. The impact is study the impact of usage. Impact सही वर्ड भी नहीं रहेगा ना. There are two terms जो कि हम commonly evaluate करते हैं. That is efficacy and the effectiveness. Efficacy and the effectiveness. So why effectiveness? Why effectiveness? So we are testing a draft platform. Okay. तो आप जैसे आप गूगल भी करोगे तो आपको मोस्ट कॉमन एफिकेसी जब वो टर्म यूज करते हैं जब आइडियल सिचुएशन में करते हैं. आरसीटी में जब आइडियल सिचुएशन में करते हैं. एफिकेसी इज इफेक्टिवनेस इज रियल वर्ल्ड सिनेरियो है ना. इफेक्टिवनेस में रियल वर्ल्ड में कैसे होता है. तो ये जो रिसर्च क्वेश्चन है इसमें हाइपरटेंशन का एडहेरेंस देख रहे हैं. तो क्या है उसको कंट्रोल सेटिंग में रखना पॉसिबल है क्या. मतलब थोड़ा सा दिस बनता नहीं. मतलब घर में बंद करके उसको ऊपर एडहेरेंस मॉनिटर करना नहीं. वो बस प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसके बाद घर चला जाता है. इट इज रियल वर्ल्ड सिनेरियो. So effectiveness is the better term. So to evaluate the effectiveness of mHealth intervention, आगे बढ़ो. हाँ objectives. Okay. So it is well drafted. Still anything you want to add? The objective और aim दो वर्ड होता है. Aim और objective में क्या डिफरेंस हम समझ सकते हैं. कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए. I don't want definition. I want a clear thing. मतलब कोई specific things जो कि हम इसमें एक्शन प्रोड्यूस कर सकें. मतलब आपके एक्सप्लेनेशन से कोई वर्ड ऐड होना चाहिए इस ऑब्जेक्टिव. मैडम ने ऑब्जेक्टिव बताया टू. Yes, very good. That time frame is missing. मतलब इनका सर रिसर्च क्वेश्चन था to evaluate the effectiveness of mHealth intervention for improving the hypertension medication adherence और उसमें the time part was missing. ऑब्जेक्टिव में क्या है हम मेजरेबल डॉट आते हैं. कब मेजर करेंगे. मतलब एडहेरेंस कितने साल के लिए. 1 साल 2 साल 6 महीने बाद 1 महीने बाद. तो the time factor needs to be added. So that makes the objective more measurable. तो अगर ये aim में होता तो चलता. Aim is what we intend to do, but objective is actually breakdown of what you actually intend to do, है ना. और
तो या रिसर्च क्वेश्चन लिखो, तो कुछ हाँ मतलब आपका ग्रुप ट्राई कर सकता है कुछ रिसर्च हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन फॉर दिस। रिसर्च हाइपोथेसिस मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूँ, शायद दूसरे ग्रुप को भी दिया है, तो थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट और पॉइंट्स भी आ जाता है। सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल। डज या हाई प्रोटीन डाइट improve muscle strength in elderly patient with frailty? Does a high protein diet improves muscle strength in elderly patient with frailty? 1 gram per kg body weight per day. सर उतना जो है हम इंटरवेंशन में डिफाइन करेंगे। अभी क्या है, एम्स ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस की बात हो रही है, तो हम वो वाला डिटेल इंटरवेंशन में देंगे। अभी तो हम बता रहे हैं कि हमारा स्टडी जो है क्या मेजर करने जा रहा है, तो थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। रिसर्च क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था? रिसर्च क्वेश्चन मींस पीको से बना सकते हैं टाइम देने। सो हियर पी इज I is protein rich diet, high protein diet, and C is comparison to standard. Outcome is improvement in the muscle mass. Okay. But BMI does not differentiate between the muscle mass and the fat mass. And so what examples are this muscle mass actually. So यहाँ से रिसर्च क्वेश्चन बन गया। अब वो क्या हाइपोथेसिस बनाना है, तो हाइपोथेसिस में दो हाइपोथेसिस लिखना है हमें। एक तो होता है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो हम लोग बनाते हैं वो कौन सा हाइपोथेसिस, जो रिसर्चर बनाता है वो रिसर्चर बनाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस बताता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द हाई प्रोटीन डाइट और अ लो प्रोटीन डाइट इन इंप्रूविंग द मसल मास इन द एल्डरली पेशेंट। दैट इज नो डिफरेंस। वो नल करता है, नलिफाई करता है, कोई डिफरेंस नहीं। आयरन की गोली देने से अभी और नहीं, आयरन की गोली दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस व्हाट द रिसर्चर प्रपोज। तो हमेशा आप हाइपोथेसिस का कॉलम है, अभी आइसेंकर का फॉर्म को लिया उसमें है, तो आपको दो क्लासिफाई करके लिखना है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आप देख सकते हो क्या बना सकते हो, yes, this is also correct. The different version may be the elderly patient receiving a high protein diet will show a significant increase in muscle strength compared to those on standard diet. Correct? तो ये हो गया muscle strength, muscle mass actually so actually इसमें जो फैट की बात होती है उसमें वीकनेस होता है, तो स्ट्रेंथ इज बेटर, मतलब मास तो शायद इसलिए ने बोल दिया तो मैंने पिकअप कर लिया उसको। तो नेक्स्ट सिनेरियो नंबर 2। अच्छा आउटकम, सॉरी उनका दूसरा पार्ट है आउटकम, द प्राइमरी आउटकम एंड सेकेंडरी आउटकम। आइटम नंबर क्या है, स्प्लिट आइटम नंबर इज 12। ओके ओके थोड़ा सा मैं लाउड बताएंगे तो सबको सुनाएंगे। थोड़ा सा और इनको कुछ बिस्कुट दिलाओ। प्रोटीन इंटरवेंशन इसमें एक चीज समझने का है, प्राइमरी आउटकम में आएगा जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से आना चाहिए। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में कि ये भी देख सकते हैं, बट
उससे ना मेथोडोलॉजी बनता है, ना सैंपल साइज कैलकुलेट होता है, कुछ नहीं। ये भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, बट उसको आप यूज कर सकते हो एज अ रिसर्च पेपर, लेकिन प्राइमरी डेटा उसके लिए कलेक्ट नहीं हुआ। तो प्राइमरी कलेक्ट हुआ है आपका मेडिकेशन एडरेस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्राइमरी आपका मेडिकेशन एडरेस के लिए आप क्या करोगे, द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल विद एटलीस्ट 80% या 90% या 70% जो भी आप अज्यूम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल लेकिन भी 20% एडरेस है और आप बताते हो एमएन इंटरवेंशन से वो 80% हो सकता है। तो the change in the proportion of the patient with at least 80% medication adherence at 6 months जो आपने propose किया। Yes. So if you both the group, then prevention of complications. Yes. इसमें दो चीज कर सकते हैं। सपोज यू आर कैलकुलेटिंग सैंपल साइज, उसके लिए कुछ और, जैसे उसमें देखते हैं कि हमारे एक ग्रुप में कितना इंप्रूवमेंट होगा और दूसरे ग्रुप में कितना इंप्रूवमेंट होगा और दोनों ग्रुप के बीच में कितना परसेंटेज इंप्रूवमेंट है। मतलब हम कंट्रोल ग्रुप क्यों लेते हैं, ये तो एडहेरेंस जो है बाकी चीज से भी इंप्रूव होता है, सिर्फ एमएल से और भी चीजें हैं जो कि कंफाउंडर्स हो सकते हैं। उसके लिए हम कंट्रोल ग्रुप बना रहे हैं कि नेचुरली तो नहीं इंप्रूव हो रहा है और चीजों का सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, किसी ने काउंसलिंग कर दिया है, कोई चीज कर लिया है ना, वो सब चीजें दोनों ग्रुप में इक्वली डिवाइड हो जाती है कंट्रोल ग्रुप में। तो क्या है कि इन दोनों के ग्रुप में कितना डिफरेंस है उसको बोलते हैं इफेक्ट साइज, है ना, इफेक्ट साइज। तो हम एक अज्यूम कर सकते हैं कि इफेक्ट साइज ऑफ 20% है ना, इन दोनों ग्रुप के बीच में 20% इफेक्ट साइज, मतलब 20% इफेक्ट साइज हो। या तो दूसरा चीज है कि प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इंक्रीज कितने हुए, कि पहले इस ग्रुप में आप देखो, आप वैसे देखो कि 10 लोग थे जो बिल्कुल ही 100 में से एडहेरेंस उनका अच्छा था और दूसरे एमएल यूज करेंगे तो 50 लोग की एडहेरेंस ठीक है और दूसरे ग्रुप में 12 लोग का था और कोई एमएल की इंटरवेंशन नहीं है तो 25 लोग जो है एडहेरेंस ले रहे हैं। अब क्या है, इस ग्रुप को आप कंपेयर कर सकते हो, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। बट द पॉइंट आई वांट टू मेक इज वो बहुत जो प्राइमरी आउटकम है वो मेजरेबल टर्म में होना चाहिए और उसको कैसे मेजर करने वाले हो, वेदर इट इज इन द परसेंटेज, मीन, प्रोपोर्शन, वो चीज क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। देन ओनली हम बता सकते। सेकेंडरी आउटकम क्या हो सकता है इस केस में, आपके केस में? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक तो देख लिया कि हमने एडहेरेंस है कि नहीं और ऊपर से देख लिया कि उसका एक्चुअली कंट्रोल भी हो रहा है, कंट्रोल भी नहीं है। तो मतलब मीन चेंज इन दी ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। वेरी गुड। अब इसको प्रोपोजल को और फंडामेंटल बनाते हैं और इंप्रूव करना है और कैसे कर सकते हैं। ये स्टडी डिजाइन बना हुआ है अभी आरसीटी, लेकिन अभी भी मैं पैसा नहीं दूंगा क्योंकि ये आपका आइडिया काफी लोगों के पास आया, देश भर से कर रहे हैं ना, तो सेम आइडिया कॉम्प्लिकेशन। अच्छा ठीक है, और कुछ? तो ये कॉम्प्लिकेशन ऐड करने से क्या हो गया, एक और ऑब्जेक्टिव हमने ऐड कर लिया, एक और वर्ड। रिसर्च फंडिंग एजेंसी कहते हैं यार मल्टीपल ऑब्जेक्टिव से उनको एलर्जी है, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक रखो, एक या दो, एक चीज देखो अच्छे से देखो। तो जैसे ही हम और कॉम्प्लिकेशन, जैसे तो थीसिस वाला काम करने में जाते हैं तो सारा 7-8 ऑब्जेक्टिव्स डाले जाते हैं। तो फंडामेंटल एजेंसी क्या है कि इतना कुछ प्रपोजल भी एक भी नहीं ठीक से करेगा, है ना, ऑलमोस्ट। तो एक चीज करो, उसको ढंग से करो। यस यस, उसका मेथोडोलॉजी अच्छे से हो तो उसको हो जाएगा कि बाकी चीज भी आप कर लोगे। हां Sir, I was proposing as an outcome. The benefits of the rate is reduced, so ultimately there is a reduction in the complication. That is what I was proposing. लेकिन इस केस में मैं ऐसा सोचूंगा, एम हेल्थ मोबाइल इंटरवेंशन, हम क्या करते हैं, दो तरह की पॉलिसी मेकिंग होती है मैम। एक होता है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, एक और होता है एविडेंस इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग क्या होता है कि फाइंड आउट द बेस्ट एविडेंस, बेस्ट एविडेंस हमें देगा। एविडेंस इन्फॉर्म्ड मतलब हम जो यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस पूछे, उनका परसेप्शन पूछे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपने आरसीटी में इतना जबरदस्ती उसको कॉल करके उसको यूज करके एंगेज कराया, लेकिन पेशेंट लाइक नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब जिससे मैं इलाज कराता हूँ वो कॉल करते रहते हैं, हम दूसरे दिन में मुझे ऐप खोलना पड़ता है और लगाना पड़ता है। पेशेंट दी एक्सपीरियंस क्या है, की स्टेक होल्डर
दिस पॉलिसी विल नॉट वर्क, दिस हाउ वी आर वर्किंग, मतलब कितने डेकेड से चला रहा है, दिस इज व्हाट वी वांट टू चेंज। तो ICMR लाइक टू फंड फॉर द मिक्स्ड मेथड स्टडी, तो you design as a mixed method RCT और improve करना mixed method pragmatic RCT, है ना? So that's how you actually refine कैसे आप फंड कराते हो। तो क्या है ऐसे नंबर जो 3 कंपोनेंट हो गए, तो आपका फर्स्ट जो है कंपोनेंट एम हेल्थ इंटरवेंशन बाय डिजिटल इंटरवेंशन कम कर रहा है, ये हमारे एरिया में पड़ रहा है, यस डिजिटल इंटरवेंशन इज अ फ्यूचर पड़ रहा है। देन सेकंड है कि आपका ये जो है उनका यूजर एक्सपीरियंस की क्वालिटी भी दे रहा है, उससे क्या चैलेंजेस भी आ रहे हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस, कितनी देर की एंगेजमेंट रही, कितने घंटे उसने एक्चुअली यूज किया, सिर्फ आप फोन करने पे फिर उसने यूज कर लिया, ऐसा कुछ मोबाइल ऐप बनाया आपने, कितनी देर एंगेज किया उसने, उस ऐप में कितना उसका एंगेजमेंट रहा, उसकी चैलेंजेस क्या थी, नेट नहीं चल रहा है या कुछ हैंग हो रहा है या मेरे मोबाइल में वो इंस्टॉल नहीं हो रहा ना, और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। वो चैलेंजेस से क्या कर सकते हो आप, इंप्रूव कर सकते हो। वो पेशेंट का पर्सपेक्टिव इसमें लेना इंपॉर्टेंट है, पेशेंट पर्सपेक्टिव ले सकते हो। उसके बाद आशा एएनएम को भी अपनी इन्वॉल्व किया है, मेडिकल ऑफिसर कहता है कि यार ये सब बेकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मेडिकल ऑफिसर का भी आपने फीडबैक लिया, दैट इज आल्सो एविडेंस, सारे स्टेक होल्डर्स का आपको लेना है। तो आपको ऐसे मतलब आपने क्या दे दिया, कंप्लीट एक एविडेंस दे दिया, हेल्थ है इससे इंप्रूव हो रहा है, पेशेंट का परसेप्शन भी इसमें अच्छा है और चैलेंजेस भी कम है और उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है। एक्चुअली यू कैन एक्चुअली implement the M health intervention। तो हमारा इंडिया हाइपरटेंसिव कंट्रोल इनिशिएटिव IHCI उसमें डालेंगे M health intervention, कॉन्फिडेंटली ICMR कहता है यस। तो whatever we make या device some intervention it should be acceptable for the people, the big perspective। तो we are moving towards patient centered care, patient is the boss, है ना? तो patient के हिसाब से होना चाहिए सारा कुछ, तो इसलिए उसका पर्सपेक्टिव लेके ऐसे एविडेंस आप करें तो उसमें आप कोलैबोरेट करिए। आप जो कोई इन्वेस्टिगेटर बनाते हैं तो उसमें अगर आपको क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं आता है तो कोलैबोरेट करिए दूसरे डिपार्टमेंट से, द रिसर्च इज आपको कोलैबोरेशन होगी। तो रिसर्च टीम जो है आपका मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए, तो है ना, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एमआरयू भी इसी तरीके से करेंगे कि आप कोलैबोरेट करो विद द डिपार्टमेंट, है ना। किसी का हो सकता है रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छा हो, आपका तो नहीं कर चीजें अच्छी हो सकती है, तो कोलैबोरेट करिए तभी तो स्ट्रेंथ बनेगा। तो कोलैबोरेशन इज वेरी की। तो डिफाइन ईच एंड एवरी को-इन्वेस्टिगेटर रोल्स क्लियरली, डोंट मेक को-इन्वेस्टिगेटर जस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, मेक फॉर सम कंट्रीब्यूशन, दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, वी ऑलरेडी स्पेंड द लॉट ऑफ टाइम ऑन केस नंबर 1, केस नंबर 2। So the item number 11B is the point where you need to refer whenever you write about randomization and blinding procedure. And blinding is 17A. Okay, blinding is 17A and randomization is 11B. okay 11B। तो बताइए सर कैसे इसको रैंडमाइज करेंगे, इसमें ब्लाइंडिंग कैसे करेंगे और रैंडमाइज कैसे करेंगे? पहले ब्लाइंडिंग पे बात करते हैं फिर रैंडमाइजेशन पे। हां, ब्लाइंडिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टडी सेटिंग होगा, स्टडी सेटिंग में एकेडमिक हॉस्पिटल ब्लाइंडिंग है एंड क्राइटेरिया होगा प्रेग्नेंट वुमेन्स हर कैंसर, उसमें डॉक्टर्स एकेडमिक हॉस्पिटल। सर वो सब डिफाइन हो गया, अभी आपको डिफाइन करना है ब्लाइंडिंग कैसे करोगे? तो ब्लाइंडिंग हम पढ़ते हैं ना, सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग, ट्रिपल ब्लाइंडिंग पढ़ते हैं। तो आप आयरन की गोली देनी है, 2 ग्रुप को देना है, तो किस तरह ब्लाइंडिंग हम कर सकते हैं? क्या पॉसिबल है? सिंगल पॉसिबल है? सिंगल ब्लाइंडिंग इज तो एक ही साइज आइडेंटिकल बनाना होगा, वो चैलेंज है ना, वो आइडेंटिकल बना के तो आप उसको बना सकते हैं।
ठीक है, सिंगल ब्लाइंडिंग इज पॉसिबल, डबल ब्लाइंडिंग बना सकते हैं इसको? हो सकता है। अगर बनाने वाली एजेंसी दूसरी हो, वो हम जिससे बनवा रहे हैं, वी आर नॉट नोइंग, जिस पर्सन वाली एजेंसी नहीं जानती है कि एजेंसी, यहाँ पे एजेंसी मतलब हम इन्वेस्टिगेटर हो गए। हम मेडिकल ऑफिसर को प्रोवाइड करेंगे, तो बताएंगे नहीं कि which grade which is having the drug and which is having the यस, तो हमने तो यस, ठीक है। अच्छा, या तो फार्मासिस्ट देगा, या तो फिर रिसर्चर टीम में जो रहेगा, कोई इन्वेस्टिगेटर हो सकता है, कोई इन्वेस्टिगेटर हो सकता है, आपका स्टाफ हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकता है। तो जो इन्वेस्टिगेटर टीम है वो ब्लाइंड करना चाहिए, तो दैट इज डबल ब्लाइंडिंग। फर्स्ट में आपने पार्टिसिपेंट्स को ब्लाइंड किया बाय प्रोवाइडिंग आइडेंटिकल, देन सेकंड में आपने बना दिया डॉक्टर्स, जो इन्वेस्टिगेटर्स है उसको भी डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट हो गए, या इन्वेस्टिगेटर टीम को आपने ब्लाइंड बना दिया। The third blinding is actually the person, the analysis जो कर रहा है, जो आउटकम देख रहा है ना, एनालिसिस जो कर रहा है, उसको ब्लाइंड बनाना है। तो दैट इज ट्रिपल बाइंडिंग, बट इट इज हार्ड टू अचीव, इट इज हार्ड टू अचीव, बट इट इज एन आइडियल वन, है ना। तो फर्स्ट टू हम कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली वो डेटा हमारे पास रहता है, यूजुअली इन्वेस्टिगेटर और उसके इन्फ्लुएंस में एनालिसिस होता है। लेकिन आप कई बार होता है, हम जैसे कुछ बड़ी फंडिंग एजेंसी क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को ना हम लोग एक्सटर्नल एजेंसी को दे देते हैं, तो ऐसा कुछ रहता है। डेटा लेगा, डेटा जो है वो कलेक्ट होता है, फिर उसके बाद वो एक्सटर्नल एजेंसी है वो उसके बाद एनालिसिस करेगी, और उसके बाद ही इन्वेस्टिगेटर को पता लगेगा, फिर वो उसके बाद फर्दर करेगा। तो ट्रिपल बाइंडिंग थोड़ा एनालिसिस कर रहा है, जो आउटकम देख रहा है वो भी ब्लाइंडेड है। तो इस केस में आई थिंक डबल बाइंडिंग तो इजीली हो सकती है, हम चाहते हैं तो ट्रिपल बाइंडिंग कर सकते हैं। तो डबल बाइंडिंग व्हाट इज द पार्टिसिपेंट्स आर अनअवेयर, sorry, single blinding. Double blinding is both participant and investigators are blinded. The triple is participant, investigator and those analyzing the data or all blinded to the assignment. ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन कैसे करेंगे? मतलब हमें दो ग्रुप में रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को डालना है। और सिस्टमैटिक मेथड। मैडम ने बताया अल्टरनेट और इसमें भी प्रॉब्लम है। क्या हुआ कि प्रेडिक्टेबल है, मतलब मैं डॉक्टर, मैं सपोज मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, ये है और दूसरा कोई है, तो क्या है मैं अपने पेशेंट को थोड़ा सा पूरे इस ग्रुप में लेता हूँ, उस वाले जगह में साइलेंट है ना, तो उसको क्या है कि हम ब्लाइंड नहीं हैं, स्टिल हमारा सबकॉन्शियस ठीक है, तो हम लोग कुछ और मेथड हमें कुछ करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कि सिलेक्शन बायस जो है ना उसको और रिड्यूस करें। तो उसके लिए और भी टेक्निक्स होते हैं, तो जिसमें सेंट्रल फार्मेसी रिलेटेड, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो मैं वो चीज बता रहा हूँ जो आपको लिखना है, दैट इज स्नूस, SNOSE। अब लोग लिख लीजिए, बिकॉज इस टर्मिनोलॉजी के लिए नंबर होता है, टर्मिनोलॉजी के लिए नंबर होता है। The snooze stand for sequentially numbered opaque sealed envelope। फार्माकोलॉजी से है मैडम, और ये लोग सबसे ज्यादा स्नूज ही यूज करते हैं, दैट इज sequentially numbered opaque sealed envelope। Each participant group assigned is sealed in an envelope and opened only after the enrollment। Sequentially numbered opaque sealed envelopes, snooze, SNOSE। तो इट इज बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेटर जो है वो जो है सिलेक्शन बायसेस ना कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अलोकेशन कंसीलमेंट, है ना। अलोकेशन कंसीलमेंट कैसे करोगे? तो अलोकेशन कंसीलमेंट डैश करके लिखना है। सो द अलोकेशन कंसीलमेंट विल बी डन यूजिंग सीक्वेंशियली नंबर्ड ओपेक सील्ड एनवेलप्स। जिससे कि इन्वेस्टिगेटर प्रेडिक्ट ना कर सके, है ना। तो दैट इज एनफ। इसमें एक्चुअली ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, अलोकेशन कंसीलमेंट में पूरा क्लास होता है, तो दैट इज एनफ फॉर दिस। और कुछ है सर आपके उसमें? दैट इज तो ग्रुप नंबर 3।
सीक्वेंसली नंबर करने के बाद भी क्या कई बार क्या होता है, एक ग्रुप में आपके ज्यादा पार्टिसिपेंट आ गए, एक ग्रुप में दूसरे पार्टिसिपेंट आ गए, मतलब कम आ गए, ऐसा भी हो जाता है। तो उसके लिए कहते हैं ब्लॉक रैंडमाइजेशन, है ना। तो ब्लॉक रैंडमाइजेशन और ब्लॉक यूज करते हैं। ब्लॉक रैंडमाइजेशन क्या है, 4 का ब्लॉक बनाते हैं। फर्स्ट मतलब 4 का ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक में A B A A ऐसे लिखा होगा, तो B A A A ऐसे करके लिखा होगा, 4 का मतलब 4 जो है उस ग्रुप में जा रहा है, 4 जो इसमें जा रहा है, मतलब या तो 4 का बना सकते हो, 6 का बना सकते हो, 8 का बना सकते हो, या लोग 12 का भी बनाते हैं, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड है 4 6 8। तो इसका ब्लॉक बना के आप कंप्यूटर जनरेटेड ब्लॉक भी होता है, जैसे रैंडमली कंप्यूटर जनरेट करता है सॉफ्टवेयर, फर्स्ट पेशेंट इधर, ये वाला पेशेंट इधर, ऐसे ही ब्लॉक लेवल भी रैंडमाइज करा सकते हो सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर मैंने भी मैडम को भी शेयर किया है, और इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टूल में भी फ्रीली मिल जाते हैं आपको, उससे भी आप मतलब जनरेट कर सकते हैं। तो सिनेरियो नंबर 3